हाय दोस्तों, बहुत बारी ऐसे पेशेंट्स जिनको रेक्टम कैंसर होता है, जिनमें परमानेंट कोलोस्टमी या परमानेंट लैट्रिन का एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उनमें कई पेशेंट्स ये ऑपरेशन कराने से कतराते हैं। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे पेशेंट से जो हमें ये बताएंगे कि उनकी लाइफ आफ्टर अ परमानेंट स्टोमा कैसी रही। एक कैंसर पेशेंट जिसको एक परमानेंट कोलोस्टमी है, उनकी लाइफ क्या थी, पहले क्या थी, अब क्या हुई, कुछ चेंजेस आए, अच्छे आए, खराब। Your guidance and your the strength you gave me to go ahead with it. I'm here in front of you after the surgery, perfectly fine, and living a very normal life. लोगों को लगता है कि यार ये ऑस्टमी बैग से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, बॉडी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ भी नहीं है। स्मेल इज देयर इफ यू डोंट क्लीन, यू नो। आप 4 दिन नहीं नहाएंगे, आप भी स्मेल करेंगे। And we are sitting since last half an hour and there's no smell. I mean, कि मैं वॉक कैसे करूँगा, सोऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, बीच ट्रिप में बीच में स्टूल आ गया। इस बैग के साथ इनिशियल एडजस्टमेंट ऑफ फर्स्ट 2-3 मंथ्स कितना मुश्किल था। एंड सोशल आउटिंग्स, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग फॉर अ डिनर एट योर फ्रेंड्स प्लेस और सम मैरिज। How has it differed now? Unless you tell them कि मेरे बैग लगा है, तो किसी को पता ही नहीं मेरे बैग लगा, क्योंकि बैग दिखता ही नहीं है। दिस इज लाइक एन इनविजिबल। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा एक बैग अभी लास्ट अगस्त में या 2-3 हफ्ते पहले भी it went on for 21 days. Wow. Even the company which sold me the bag. 10 days is the recommendation. 21 days. See, it's all again in your eating. Sleep pattern में कुछ changes आते हैं, sleep difficult हो जाता है, मैं इस तरफ करवट लेके सोऊं। Having a colostomy, has it prevented you from doing things that you actually love in life? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्चित पंडित एंड मैं हूं डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला। आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर मिखेल से, जो मेरे बहुत ही प्रिय और अच्छे मित्र रहे हैं, मेरे स्कूल के सीनियर रहे हैं, and he has also been GladRag's North Zone India Mr. India, and it is my fortunate thing that he opted me as his operating cancer surgeon, and for which I am very, very glad and thankful for building that trust in me and having that trust in me. Mikhel, welcome to this show. Thank you so much. First of all, thanks to you that you diagnosed me properly. Guidance was perfect, absolutely. I was hesitant, to get a surgery done, as we've discussed, shared so many times. But your guidance and the strength you gave me to go ahead with it. I'm here in front of you after the surgery, perfectly fine, and living a very normal life with a permanent ostomy bag, or whatever you say. And that's about it. I mean, I'm very comfortable with it. If you want to, Glad. If you want to take it further as a discussion about how the ostomy works and my lifestyle and everything, if it has changed or not, nothing has changed, to be very honest. I was reluctant. I mean, we've shared a lot of times that surgery एक lifestyle change हो जाएगा और problems आएंगी that I can't, lead a normal life like every normal being does. But 2 महीने तक लगा मुझे कि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा, मैंने कोई गलत decision ले लिया ये करवा के. But after that, once you come in terms with yourself basically, so फिर उसके बाद there is no looking back. And honestly, to be very frank with you, this is much better than even a normal person living without an ostomy, to be honest. That's nice. मैं व्यूवर्स को बता देता हूँ कि मिस्टर मिखेल की हमने सर्जरी करी थी 2023 में, जिसमें उनका पहले कीमो रेडिएशन हुआ था फॉर कैंसर ऑफ द रेक्टम, दैट इज़ लैट्रिन के रास्ते का कैंसर होता है। एंड कीमो रेडिएशन के कुछ 8 हफ्ते बाद हमने एक सर्जरी करी थी, जिस पे हमने बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया था, क्योंकि वो सर्जरी में प्रॉब्लम ये थी कि वो सर्जरी से हम एक परमानेंट कोलोस्टमी देते हैं, मींस एक परमानेंट बैग देते हैं जिसमें स्टूल आके इकट्ठा होता है।
and obviously it is a trauma to listen for the very first time कि you will undergo a permanent colostomy. Lot of things run through your mind, and that we will discuss in this podcast. Especially, let me interrupt you, especially when you are at, you know, your age is very prime, you're 43. So 43 is no age actually to get, you know, get a surgery done, thinking कि यार ये तो मैं एकदम से तो लाइफ लॉन्ग हैंडीकैप ना हो जाऊं, एक वो माइंड में रहता है. अब आज आप मेरे से पूछेंगे आई एम 46, तो आई दैट्स यू नो वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ, दैट मैंने सर्जरी करवा ली. अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम कैंसर फ्री, ऑल थैंक्स टू यू, एंड लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ. लोगों को लगता है कि यार ये ऑस्टमी बैग से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, बॉडी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस हैं. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. आई प्ले स्पोर्ट्स एवरी थर्ड डे. क्रिकेट खेलता हूँ पूरा 20 ओवर्स का, जिसमें 3.5-4 घंटे आप फील्ड पे रहते हैं. डाइव मारनी होती है, भागना होता है, सब करना होता है, एंड आई एम डूइंग इट वेरी नॉर्मली. मेरे को कोई इशू भी नहीं है करने में. थोड़ा सा हाँ ये रहता है बैक ऑफ द माइंड कि बैग ना खुल जाए, बट वो था शुरू में एक फेयर खुलता था, अब नहीं है, अब वो भी चला गया. एंड वेरी नॉर्मल, यू नो, आई एम लीडिंग ए वेरी नॉर्मल लाइफ लाइक एवरीवन डज, लाइक यू लीडिंग. करेक्ट. कोई फर्क नहीं यार इसमें. आपका बेस्ट पार्ट इज आपको घड़ी लाइक सुबह उठना है, थिंकिंग दैट यू हैव टू गो टू द लू, clean yourself or, you know, ease yourself or whatever it is. Here I don't have to do anything. I get up, I drink my coffee, keep sitting. When the bag is full, I go clean it. So that's about it. I mean, ये एक फर्क है बस, और कुछ नहीं है, to be honest. So आज हम एक्चुअली इसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसमें वी जस्ट वांट टू ब्रिंग आउट द ट्रुथ. सो हमारा जो पॉडकास्ट है, वी टेक लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स एंड हम उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स मेरी ओपीडी में आते हैं मिखेल, जिनको मैं बोलता हूँ कि आपको परमानेंट कोलोस्टमी की ज़रूरत है, बट द फर्स्ट रिएक्शन दैट द पेशेंट इज व्हाट वुड बी माई लाइफ, माई लाइफ वुड चेंज, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली वुड एक्सेप्ट मी, कोई मेरे बगल में बैठेगा उसको स्मेल तो नहीं, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ जनरल थिंग्स विच वी विल डिस्कस ओवर दिस नेक्स्ट हाफ एन आवर, एंड आई वॉन्ट यू टू कैंडिडली गिव दोज आंसर्स जो भी आपके मन में है. Not that you have to give some no good absolutely. answers. I am giving you an honest opinion because I'm going through it and I've gone through it. Yeah. अब जो मैं फील करूंगा मैं वही आपको बता रहा हूँ. So आइए देखते हैं, सुनते हैं खुद इनकी जुबानी कि एक कैंसर पेशेंट जिसको एक परमानेंट कोलोस्टमी है, उनकी लाइफ क्या थी, पहले क्या थी, अब क्या हुई, कुछ चेंजेस आए, अच्छे आए, खराब आए, परमानेंट कोलोस्टमी कोई बहुत बड़ा हुआ है या फिर एक्चुअली एक मेजर प्रॉब्लम है. लेट्स डिसाइफर ऑल दीज क्वेश्चंस. इनको अच्छे से इन क्वेश्चंस को छील देते हैं, ताकि जो भी पेशेंट्स इस सर्जरी से गुजर रहा है अपने कैंसर सर्जन के साथ, जिसका होने वाला है या किसी को एडवाइस किया है, प्लीज़ वॉच दिस, शेयर विद योर mates, your friends, your relatives, your husband, your wife, whoever is undergoing this procedure, just to make sure that what they are going into, they should know that it is not that bad in front of what life and life cure that they are going to attain. So my first question, Mikhil, is to you, is that जब मैंने आपको पहली बारी बताया था 3 साल पहले कि आपकी सर्जरी होनी है and it has to be a permanent colostomy, what was running through your mind at that point of time? If you just go 3 years back, उस टाइम पे आपके दिमाग में चला क्या कि यार इसने तो बोल दिया बड़े आसानी से इस डॉक्टर ने कि permanent colostomy होनी है. What was your journey at that point of time? See, to be honest, it took me And you time. were what age? I was 43 when I was diagnosed with CA rectum. एंड बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि 43 की एज में कोई डायग्नोज हो जाए, कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल. आई वाज लीडिंग अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल. थोड़े वाइसेस थे, लाइक स्मोकिंग थी, ड्रिंकिंग थी, वो आप छूट गई हैं फॉर्चुनेटली, थैंकफुली. एंड मेरे को भी लगा कि अगेन एज यू सेड कि लाइफस्टाइल में चेंज हो जाएगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे, फ्रेंड्स दूर बैठेंगे, स्मेल आएगी, क्या होगा. मेरे माइंड में भी ये 2-3 महीने चला था जब तक मेरी वो रेडिएशन और कीमोथेरेपी चल रही थी, बिफोर द सर्जरी आई मीन टू से. बट यू नो देयर कम्स अ टाइम जब आप सारा ये रेडिएशन करके और कीमो करके अपने स्कैन्स कराते हैं, उसमें आपको क्लियर दिख जाता है कि यू नो ठीक है, योर ट्यूमर हैज श्रंक लिटिल बिट बट इट हैज ऑल्सो मूव्ड लिटिल बिट फ्रॉम वेयर इट वॉज. सो देन आपके माइंड में आता है यार एक जगह वो था, वो ठीक है छोटा हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, बट यू कांट टेक मोर रेडिएशंस ऑल्सो
28 रेडिएशन ज़्यादा आप ले नहीं सकते, आपकी बॉडी नहीं ले सकती टू बी ऑनेस्ट, बाकी ऑर्गन्स को हार्म होता है। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं लेता रहता। बहुत लोग हैं जो मैं सुना है कि वो ज़्यादा रेडिएशन भी लेते हैं, कीमो चल रही है उनकी 2-2, 3-3 साल से चल रही है, बट दे आर ऑल सफरिंग, व्हाट इज द पॉइंट? सो देयर इज अ क्वेश्चन, आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। आपको आपकी वाइफ, आपका बच्चा, आपकी मदर, फादर, कोई आपको बहुत लोग ओपिनियंस अपने देंगे, लेकिन यू हैव टू सिट अलोन उस टाइम, और आपने अपना फ्यूचर देखना है। हर आदमी, एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू सी फॉर देमसेल्फ। ये जो मैंने लास्ट सर्जरी से पहले बैठ के आराम से सोचा था, आई हैव टू डिसाइड कि मैं इसको कराना चाहता हूँ या नहीं कराना चाहता हूँ। When I saw my PET scans, when I shared it with you, you were told me that it has shrunk. ठीक है, it was written in the report also. It moved up little bit. अब जब little moved up little bit, it can move anywhere in your system, to be honest. फिर उस टाइम आपने डिसाइड करना है जी आपने सर्जरी करानी है या नहीं करानी। And I didn't even take a second to decide, यार let's go ahead with it. लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो तो उनका काम है, उनको कहने दो, जो सोच रहा है सोचने दो। आपने अपनी लाइफ लीड करनी है। यू विल कम टू टर्म्स, एक ऑस्टमी बैग है, लोगों के स्टेंट लगते हैं, लोगों के कितनी चीज, लोगों का एम्प्यूट हो जाता है, बहुत चीजें होती हैं। ये तो फिर भी एक कंसील्ड चीज है, वेरी इंटीमेट है, इट्स अंडर योर क्लोज, यू डोंट इवन नो, नो वन नोज। इनफैक्ट आई अनलेस यू डोंट टेल एनीवन कि आपका ऑस्टमी बैग है, किसी को पता ही नहीं चलता, फर्स्ट ऑफ ऑल। रही बात स्मेल की, स्मेल इज देयर इफ यू डोंट क्लीन, यू नो, आप 4 दिन नहीं नहाएंगे आप भी स्मेल करेंगे। And we are sitting since last half an hour and there's no smell. I mean, the cameramen are there, everyone who are shooting the podcast are there, आजकल तो everyone is sitting here. मेडिकल हैज गॉन, it's so advanced, you know, there is no question कि आपको कोई स्मेल भी आए, the products are so good, और फील ही नहीं होता, ये आपकी बॉडी का एक पार्ट लगता है आपको, कि एक जैसे मेरा एक यहाँ पे एक और पार्ट लगा हुआ है, दैट्स अबाउट इट। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मूवमेंट की, या सोने में कोई प्रॉब्लम हो, या स्टूल कभी फंस रहा है तो कि बैग फट जाता है, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब फियर थे पहले? ये सब फेयर थे मेरे को। ये सब फेयर क्या थे, ये लोगों ने बोला था, ये लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन जब आपको खुद लगता है, देन यू कम टू सी, लाइक आई एम कंप्लीटिंग 3 years विद द बैग नाउ, इन अगस्त में 3 साल हो जाएंगे। सो इफ आई हैव टू से दैट प्रोबेबली व्हाट मेड यू गो फॉर द सर्जरी, कि आपने सर्जरी, ये सब फियर तो तब थे कि मैं वॉक कैसे करूंगा, सोऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, बीच ट्रिप में बीच में स्टूल आ गया, बैग में है, नाउ तो यू आर एक्सपीरियंस, नाउ यू नो, बट उस टाइम पे फियर होता है। तो इज इट एनी टाइम इट केम टू योर माइंड कि यार चलती का नाम ही गाड़ी, यू नो, मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ, जो चलती है ना वही गाड़ी है, जो खड़ी हुई गाड़ी है ना, जो डेड गाड़ी है, दैट इज नॉट अ कार, इट इज जस्ट अ शो पीस। इफ यू वांट टू लिव यू हैव टू रन, आपको जीना ही है, एंड दैट इज ओनली लाइफ। इफ यू आर वांट टू लिव, इफ यू वांट टू लिव फॉर योर वाइफ, योर kids, and I think exactly. this is the discussion we had. I told you very candidly, see, my daughter was very young that time, she was in 9th standard, now she's just completed her boards, finished the school basically. I want to see her grow, I want to see her, you know, established in life, she like doing good in life. At least I have to be there to see all that, right? अगर मैं डिसीजन तब नहीं लेता, आज भी मैं बेड रिडन होता, ब्यूटीफुल, या बेड रिडन नहीं होता, चलो टच वुड, you know, I'm as normal as you are right now. Correct. Is just a question of a bag, which is to my thinking is just a mental block. अगर आप उस ब्लॉक को अपने आप से बात करके क्रॉस कर जाओगे तो फिर कोई इशू नहीं है लाइफ में, आप बड़ा सिंपल नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। मेरे जैसा आदमी जिसको स्पोर्ट्स खेलनी है हर तीसरे दिन, रनिंग करनी है, जिम तो मैं खैर करता नहीं, आउटडोर एक्सरसाइजेज रोज करनी है सुबह उठ के, मैं तो ये सोचता भी नहीं कि मेरे बैग लगा है। अच्छा, बैग में क्या है, बैग भी लगा है, उसका एक बेल्ट आता है जो उसको और टाइट करके रखता है, तो वो फेयर एक और हट जाता है कि आपका बैग खुलेगा, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब उसमें। सो ये जितने भी फियर थे जो बिफोर सर्जरी दिमाग में चल रहे थे, इसमें से कितने % ऑफ दीज फियर्स वर ट्रू आफ्टर द सर्जरी? देयर इज नथिंग इज ट्रू, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बड़ा सोचा था कि ये बैग लग के था, आई विल बी, माय लाइफस्टाइल विल बी डिफरेंट, दैट आई वोंट बी एबल टू रन, टू वॉक प्रॉपर्ली, स्मेल करेगा, सोशली लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्मेल आ रही है, इससे दूर रहो, कुछ करो। आई विल टेल यू, आई मेड मोर फ्रेंड्स आफ्टर दैट यार। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, ऐसे दोस्त वो होता है, या जो आप जो खड़ा रहे उसको ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्मेल आ रहा है या नहीं आ रहा, जो जबकि है ही नहीं वो सब चीजें। ये सब चीजें मेरी पहली थी सर्जरी में। इनफैक्ट यू नो, आई टोल्ड यू कि लेट्स वेट एंड वॉच मोर, बट यू हैड थ्रोन द बॉल एट माय, यू नो, इट्स योर डिसीजन। आप भी थोड़ा गुस्सा हो गए थे, बट दैट्स व्हेन इट टिक्ड मी। मैंने कहा मेरे को
you know, I have to live for my family, daughter, friend, everything, you know, a lot of things come in my mind. So I went for it. ठीक है, 10-15 दिन मेरे साथ मेरे को यू नो कम टू टर्म्स दैट मेरा बैग लगा है, मेरे को 15-20 दिन लगे. इनिशियली क्या है कि आप देयर इज इट्स लाइक अ न्यू पार्ट इन योर बॉडी कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा यू हैव टू बी पेशेंट, 2 या 3 महीने टू कम टू टर्म्स, यू नो, नाउ दैट यू हैव टू लिव विद दिस, यू बेटर विल लिव विद इट. एंड उसके बाद से ये आपके बिल्कुल माइंड के बाहर आ जाएगा, ट्रस्ट मी, कि आपके एक बैग लगा है और या आप कुछ नहीं कर सकते. I'm glad you brought this because my next question was exactly this कि those patients who are undergoing or who are undergoing this surgery next 1 month or 2 months because chemo radiation के बाद 8 weeks का right wait होता है, correct. How difficult was the initial adjustment after the surgery कि इस बैग के साथ initial adjustment of first 2-3 months कितना मुश्किल था? मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको एडजस्ट करने में अपने आप को. मेरे को लगा, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, 14th अगस्त सर्जरी वाज डन, 24th अगस्त आई वाज डिस्चार्ज्ड, 3rd और 4th ऑफ सितंबर आई केम टू टर्म्स के बैग लग गया. ठीक है, शुरू में मेरे को आदत नहीं थी कि बैग को कैसे क्लीन करना है और कितनी टाइम में चेंज करना है, क्या नहीं करना. उस टाइम भी मैं अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था, तो बैग जल्दी खुल जाता था बेसिकली. बट कोई चीज़ आपको नहीं हो तो आपको 2-3 महीने लगते हैं उसको समझने में. बाय नवंबर आई से 2 महीने सर्जरी के बाद से आई वाज प्रीटी नॉर्मल. दिसंबर 2023 आई स्टिल रिमेंबर आई वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई मेट यू. आपकी मेरा फर्स्ट विजिट था आफ्टर द सर्जरी. Right. सो आई टोल्ड यू दैट मैं कल खेल के आया हूँ और 50 रन मारे हैं मैंने. अभी तक याद है वो. एंड वो उसके बाद से हैप्पी एंड सो थ्रिल्ड, यू नो, बिकॉज आई टेल यू, मुझे वो हर एक बात याद है आपके साथ. बिकॉज एज अ डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर, हमारा एम सिर्फ सर्जरी करके बीमारी खत्म करना नहीं है आज की डेट में. Absolutely. क्योंकि कैंसर इज क्योरेबल. वी ऑल्सो वांट टू सेंड दैट पेशेंट बैक इन द सोसाइटी नॉर्मली. सो what all has changed? How are you traveling before and now? For example, if I ask you one things, so has your travel changed before and after the surgery? ट्रैवल तो खैर कोविड के टाइम से मेरा कम था, बट लाइक आई ट्रैवल once in 6 months or 1 in 8 months. बड़ा नॉर्मल है, कुछ कोई इशू नहीं है. मैं बाय रोड जाऊँ या बाय एयर जाऊँ या बाय ट्रेन जाऊँ, ट्रेन से तो खैर जाते नहीं. लाइक आई जस्ट वेंट टू बड़ौदा लाइक 2 months बैक. आई डिडंट इवन फील कि मेरे कोई बैग लगा है या एयरपोर्ट पे कोई इशू आई है मुझे. इनफैक्ट यू नो दे आर एक थोड़ी सिंपैथी देते हैं सिक्योरिटी वाले भी. बोलो नहीं तो तुम मेरा क्या है कि मैं तो ऐसे बोले सब कुछ नॉर्मल है. मैं तो एक एडवांटेज भी लेता हूँ, you know, being a handicap, जो लाइन में नहीं लगना. Not a handicap. I mean, this comes as a this comes under that handicap if you tell the security there. Okay. And you get a you know special privilege कि आपको लाइन में भी नहीं जाना, इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, सिक्योरिटी वाले आपसे ढंग से बात करते हैं. It's not a matter of gaining sympathy or something like that. बट टू बी ऑनेस्ट बड़ा नॉर्मल है, कोई उसमें कोई इशू नहीं है ट्रैवल में. फरवरी में ही मैं बाय रोड, वन ऑफ माय वेरी क्लोज जीजा जी passed away, so we had to go to Jalandhar urgently. So me and my brother, we drove down in the morning and came back at night. So that journey itself is 900 kilometers. In the car I was sitting, we went at 7 in the morning, we were back home by 11:30 at night. आप सोच लीजिएगा, वो पूरा एक तरह से पूरा दिन मैं गाड़ी में बैठा हूँ 950 किलोमीटर. मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. My brother had to go clean him, you know, he had to go to the loo twice. And I was sitting comfortably. नहीं, मेरा खैर इतना भरा भी नहीं. एंड होता क्या है ना, थोड़ा इसमें क्या है कि आपको पता करके आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी बॉडी ऐसे वो तो सेट कर देती है बैक को कि आपके जो स्टूल है और मोशंस हैं वो कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड. ये ट्रैवलिंग के टाइम पे थोड़ा एंजाइटी है या क्या है या थोड़ा फन होएगा या आप यू नो गोइंग आउट ऑफ द सिटी मे बी. तो कुछ होता है कि वो माइंड सिग्नल भेजता है कि बैग को या मोशन को धीरे धीरे ये दिस आई हैव नोटिस. So thrice I've noticed this. Okay. So इतना मेरा खैर ट्रैवलिंग नहीं है, but travel issues पे कोई प्रॉब्लम नहीं. And social outings, for example, you're going for a dinner at your friend's place or some marriage. How has it differed now? Unless you tell them कि मेरे बैग लगा है तो किसी को पता ही नहीं मेरे बैग लगा, क्योंकि बैग दिखता ही नहीं है. This is like an invisible thing. Correct. Only thing is you change your clothes. Like जो मैं XL पहनता था आज मैं डबल XL पहनता हूँ ताकि वो और ना दिखे. क्योंकि आप जितना लूज कपड़े पहनोगे तो वो नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है. If you tell them that I have a ostomy bag, they'll get to know. Otherwise, they won't even get to know. And at work, are you able to do your work? Yes, absolutely normal. I work for like 6-7 hours continuous, sitting on a table. मेरा काम ज़्यादा recruitment का है, तो I have to read a lot, sit in a place. So
कोई इशू नहीं है उसमें, तो 10 मिनट खड़ी ब्रेक ली बैठ गए फिर काम करा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूवमेंट वाइज कोई आप रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, आप कुछ भी कर सकते हो। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू, इफ यू, अगर आपको एक ये फेयर साइकोसिस है कि ये स्पेल करेगा कुछ करेगा, क्लीन योर बैग नाइसली। इसके डिओड्रेंट्स आते हैं, इसका लुब्रिकेंट आता है, यू कैन ओपन द बैग, टेक अ बेबी वाइप एंड क्लीन इट नाइसली। यू कैन वेयर ग्लव्स एंड डू इट अगर आपको प्रॉब्लम है। ये है कि थोड़ा स्टूल दिखता है तो वो मेंटली लगता है लोग यार स्टूल दिख रहा है मेरा। So do you carry this kit of a No, glove and a No, nothing. deodorant or It's anything along available with every. you? See, deodorant will last you 2 days, 3 days. Once you put it, the smell will be there, the fragrance would be there. Okay. But I have stopped using all that because all those things are value additions. You know, just increasing the price of the Price of the bag product. and whatever. मैं basic एक बैग खरीदता हूँ, इसमें 2-3 तरीके के बैग आते हैं। एक होता है जो सिंगल पीस होता है जिसको कहते हैं, अब वो बॉडी में लगा दो एंड यू आर गुड टू गो। उसमें लेकिन क्या होता है कि आपका अगर मोशन बहुत टाइट है तो वो कभी कभार वो निकल जाएगा। सो दैट इज नॉट एन Very ऑप्शन। practical thing. दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल बैग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप पैसा उतना ही खर्च रहे हो। तो एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का बैग लीजिए जिसको 2 पीस कहते हैं। तो उसमें क्या है कि जो आपका पीछे का होता है, उसको बेस प्लेट होती है, उसको वो चिपका देते हैं आपकी बॉडी पे, विच विल बी स्टक अनटिल यू विल फोर्सफुली पुश इट आउट, remove it. और उसमें क्या है कि बैग आपका अलग है, बैग उसको इसमें टिक क्लिक करके उसमें बैग लग जाता है। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है कि यार मेरे बैग से स्मेल आ रही है, तो वो एक अच्छी ऑप्शन है कि आप बैग हटाएं, नया बैग लेके लगा नीचे का बेस प्लेट रहने दो। यूजुअली मैं दोनों इकट्ठे चेंज कराता हूँ बिकॉज मेक सेंस। आप 10 दिन पुरानी प्लेट पे नया बैग लगा दो तो वो बाद में प्लेट चेंज करो, वो बैग चेंज करना ही पड़ता है उसके बाद। सो इट मेक सेंस। आप 7-8 दिन 10 दिन, कंपनी कहती है 7 दिन 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन कहते हैं जितनी भी बड़ी मेजर कंपनीज हैं इसमें। बट आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा एक बैग अभी लास्ट अगस्त में या 2-3 हफ्ते पहले भी it went on for 21 days. Wow. Even the company which sold me the bag. 7 to 10 days is the recommendation. 21 but it went days. to See, 21 it's all again in your eating habits. अगर आप ढंग का खाना खा रहे हैं, आपका स्टूल स्मेल नहीं करेगा, आपको इतने मोशन नहीं आएंगे। खाना का क्या मतलब बेसिक होम फूड इज योर ढंग का खाना। आप जितना बाहर खाएंगे, ऑयली खाना है, व्हाट मीडियम ऑफ ऑयल दे आर यूजिंग, गॉड अलोन नोज। स्पाइसेस इतनी होती हैं, यू नो, ऑल दैट इज, आपका स्टमक वो सारा अपसेट करके रखता है, कभी डायरिया कर देगा तो कभी आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा, और आपका एक सिस्टम नहीं बन पाएगा कि वो आपका कोई टाइम नहीं रहेगा उसमें बेसिकली। अच्छा, सो मिखेल, एक और क्वेश्चन मुझसे पेशेंट्स तो काफ़ी पूछते हैं कि स्लीप पैटर्न में कुछ चेंजेस आते हैं, स्लीप डिफिकल्ट हो जाता है, मैं इस तरफ करवट लेके सोऊं, मैं इस तरफ करवट लेके कुछ भी नहीं, नथिंग। शुरू में लगेगा आपको 2 महीने कि मेरा बैग ना खुल जाए जिस तरफ बैग है, मेरे को भी लगा था, बट अब मेरे को कुछ नहीं लगता। इनफैक्ट जिस साइड मेरा बैग है मैं उस तरफ ज्यादा सोता हूँ ताकि वो प्रेस्ड रहे और वो कभी खुलने का वो ना हो गया। वो कभी माइंड में आया था लेकिन अब तो वो भी नहीं आता है। एक बार आप सोएंगे, आप सो ही जाते हैं। points you have given us this is what I'm going through, so I'm telling you very candid and very truthful answers. लोगों को ये लगता है कि नहीं लगाना बैग, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, खराब हो जाएगा, सोसाइटी हमें रिजेक्ट करेगी। लोगों का काम है सोचना और बोलना। So my last question is कि confidence is did that change from before to now? I mean, out of all these questions, confidence was shattered initially. Now you have regained, or is there anything that comes on to the again it comes to that thing कि यार वही, आप जब you come to terms with anything new you have in your system for, आपको 2 या 3 महीने लगेंगे। मेरे को भी 2-3 महीने में थोड़ा शेल में चला गया था यार, ठीक है मैं बैग लग गया, कुछ कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लाइक आई सेड, जैसे दिसंबर आई थी, when I thought कि यार ठीक है बैग को तो कुछ हो नहीं रहा, let's go out, let's move out। एक बार आप बाहर जाना शुरू करोगे देन आप भूल जाओगे मेरे को बैग भी लगा हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं है, या इवन इफ आई मीट माई क्लाइंट्स, इवन इफ आई टेल देम, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद इट। यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड विद दीज थिंग्स। ये आपको कोई अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो आपके लिए जगह है ही नहीं, आपको छोड़ देना चाहिए वहां जाना। पर मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं। My clients, my friends, my family, everything is accepted. Everyone is accepted. कि ठीक है, this is very normal. This is nothing. In fact, I would say लोगों के पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, बाईपास सर्जरीज होती हैं, वो ज्यादा मेजर चीजें हैं। I think this is a very small thing compared to what people are suffering. And why suffer if there is an alternate that you can get a permanent ostomy done and put a bag? Why not go for it? Wherein you are saving your life. You're saving your life.
अगर डिलेमा में क्यों बैठना है आपको 3 साल 4 साल। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जिस कंपनी का मैं बैग लेता हूँ, कभी कभार मैं उसी की एक कंपनी से आदमी बुलाता हूँ, बिकॉज दे आर सी हर एवरीथिंग, अ प्रोफेशनल विल डू इट प्रॉपर्ली, लेमैन वो कैन नॉट डू इट प्रॉपर्ली। जो कंपनी की सेटिंग होती है, फिटिंग होती है, उसको आती है। उसने मुझे बताया कि उसका एक पेशेंट है, इज क्वाइट ओल्ड, 70 years old, ही इज रिलक्टेंट ऑफ गेटिंग अ सर्जरी, आई डोंट नो व्हाट कैंसर ही हैज, टू बी ऑनेस्ट। उसका 3 साल हो गया, 3 साल से वो कीमो कर रहा है, कंटिन्यूअस कीमो। एवरी 6 months ही इज इन द हॉस्पिटल इन डे केयर, कि उसकी कीमो चल रही है 6 महीने। आई वाज शॉक्ड लिसनिंग टू इट। मैंने कहा व्हाई इज ही सफरिंग सो मच? कीमो इज अ केमिकल यार, आप अपने सिस्टम खराब कर रहे हो। ये ठीक है, कीमो जरूरी है कैंसर के लिए, यू कैन नॉट अवॉइड इट, लेकिन एक बार करना तो बनता ही है। अगर डॉक्टर ने बोला है आपको कीमो करनी है तो करो, खत्म करो, एंड दैट्स अबाउट इट। अगर मैं मतलब आई एम जस्ट रिलेटिंग दिस कि व्हाई सफर सो मच, रादर देन इफ यू हैव एन ऑप्शन गो फॉर इट एंड लीड योर नॉर्मल लाइफ। ये बहुत नॉर्मल है, थैंक यू। इसमें कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। लोगों को बस एक मेंटल ब्लॉक है। No, अगर आपने वो मेंटल ब्लॉक को, अगर वो अपने आप को आप क्रॉस कर लोगे ना, कि ये अपने अंदर से ही, तो फिर कोई इशू नहीं, इस बैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। व्हेन यू हैड कम फॉर सर्जरी, आई रिमेंबर you asked me you are a very practical person. Yes. Everyone in our school loved you. You are one of the most smartest guys. आपको पता ही है, देखिए यू नो आई वाज अ क्रिकेट कैप्टन, आई वाज ऑल स्पोर्ट्स, कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं था जो मैंने नहीं खेला। मैं वहीं आ रहा हूँ। So you said कि there are 3 things that you love totally. Your family, your kid, cricket and gym. Not gym, you can say, but exercise. Even more hardcore exercises which are free hand. Correct. Gym तो weights है, weights से वैसे आज हम movement नहीं आपसे होती। पुशअप्स कराएंगे ताकि लोग देखें कि कोई चेंज नहीं आया है। कोई चेंज नहीं आया। In fact, I do. These 3 things you said that you love. हाँ। And I just want to ask you कि having a colostomy, has it prevented you from doing things that you actually love in life? लाइफ में ना हर एक के 3 मेजर थिंग्स होती हैं यार, ये इस पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करूंगा। मैं क्रिकेट खेलने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं एक्सरसाइजेस पे, मैं बच्चे, फैमिली टाइम, इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सो हैज इट चेंज्ड? हैव यू कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन दैट? आई एक्सरसाइज 45 minutes एवरी मॉर्निंग, जिसमें मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ आप फ्री हैंड ही कर सकता हूँ, विच इज मोर ऑफ स्पॉट रनिंग। स्पॉट रनिंग इज वेरी रिगरस, यू हैव टू डू इट वेरी क्विक। आई डू 600 स्पॉट टाइम्स स्पॉट रनिंग। मैं आपको बता के हूँ, मतलब people can google what spot running is, and jumping jacks आपने सुने होंगे। I do 500 of those, which is not a joke. Every 60 का सेट, 65 का सेट, 70 का सेट एक करता हूँ, उसमें 5-6 सेट हो जाते हैं। And then I do push-ups. कई सेट करके दिखा देना, लोग उसी में and then I do 100 push-ups. I try to do more, but मेरे 100 से ज्यादा होते नहीं, क्योंकि मेरी रिस्ट में कभी दर्द हो जाती है। ब्यूटीफुल। मैं उससे ज्यादा नहीं करता हूँ। सो ये सारा एक 45 मिनट्स का मेरा एवरी डे का रूटीन है। अब एवरी डे आई मीन टू से 5 दिन हफ्ते में, 2 दिन मैं ब्रेक करता हूँ, कुछ नहीं करता। ये मेरा 3 साल सर्जरी के बाद से भी चल रहा है, उससे पहले भी चलता था, विच हैज नो कॉम्प्रोमाइज इन माई लाइफ। ये करना ही करना है, विदाउट एक्सरसाइज यू कैन नॉट लिव। उससे मेरा तो गुजारा नहीं है उसके बगैर। रही बात क्रिकेट की, थोड़ी गर्मी है इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। उस कीमोथेरेपी से बॉडी गर्म रहती है कभी कभार। लेट इट गो आउट। आप जैसा आपने कहा था, कीमो टेक्स टाइम टू गेट आउट ऑफ द बॉडी। सो मेरा हो गया है, कीमो खत्म हो गए, 2 साल हो गए। थोड़ा गर्मी में मैं अवॉइड करता हूँ क्रिकेट, लेकिन आई प्ले नाइट क्रिकेट, जो आजकल फैशन में बॉक्स क्रिकेट कहते हैं जिसको। तो रात के 10 बजे से हम 12 बजे तक खेलते हैं, जिस विच इज एज रिगरस एज योर नॉर्मल क्रिकेट ग्राउंड। तो वो भी बंद नहीं हुआ, वो भी चल रहा है, नॉर्मल है। ये चीजें हैं जो कभी हमारी वाइफ से भी झगड़ा हो जाता है कि तू नहीं जाएगा रात को, लेकिन ये मैं जाता ही जाता हूँ। ये तो नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड, दिस इज लाइफ। यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ फॉर स्पोर्ट्स। अदरवाइज फिर तो आपके माइंड में वही आएगा ना, मैं तो बीमार बैठा हूँ, कुछ नहीं कर सकता। वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना दिमाग से कि आप बीमार हैं। तो एक ट्विस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। सो व्हाट was there any surprise that you had in your life, any changes in your life that, or a positive change that happened because of stoma? क्योंकि ना लोग स्टोमा कहते हैं, स्टोमा से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, which you have totally negated कि stoma is just normal for your whole life. Absolutely. But normal. Any positive surprises happened after stoma? For Not example, yet. Maybe something your happens. food habits have improved. Yes, my food habits. I have started eating less oily food. I eat on time. अल्कोहल ना के बराबर हो गई है, ना मतलब नेग्लिजिबल, 4 महीने में एक बार हो गई है।
वो भी बहुत लिमिट में. अब मन नहीं, एक बार जो चीज छूट जाती है मन नहीं करता. मन नहीं करता. एंड देन वंस यू नो दैट ये चीजें ठीक भी नहीं है मेरे लिए पोस्ट योर माई सर्जरी एंड पोस्ट व्हाट आई वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर. सो ये चीजें छूट जाती हैं. सो इन अ वे इट्स गुड. माई स्टैमिना हैज इंक्रीज्ड, माई लाइफ स्टाइल इज चेंज, आई गेट अप एंड ऑन टाइम, आई स्लीप ऑन टाइम. बहुत चीजें हैं जो चेंज कर जाती हैं इसमें. बट एज आई सेड इट्स वेरी नॉर्मल. मेरे को तो देयर इज नो सरप्राइज एलिमेंट टू इट के कुछ मे बी समथिंग हैपेंस डाउन द लाइन, कुछ चेंज हो जाए आगे. बट बड़ा नॉर्मल है. वन थिंग गुड, स्मोकिंग इज shut, drinking is very less, eating habits are good, उससे पहले लाइफस्टाइल में. Because you were saying that कि स्टोमा में को मेंटेन करने के लिए क्या खाना है वो भी थोड़ा आप अगर नॉर्मल खाएंगे, घर का खाना खाएंगे which is more of staples, your rice, your दाल, your चपातीज, your सब्जियां, आप जितना वेजिटेरियन खाएंगे ना इट्स गुड फॉर यू. नॉनवेज का क्या होता है ना, वंस योर थोड़ा सा वो इंटेस्टाइन जब आप बाईपास कर देते हैं ना तो उसका डाइजेशन में इशू रहता है नॉनवेज का. उससे आपको कॉन्स्टिपेशन होती मुझे भी होती है, आज की डेट भी आज तक होती है. लाइक 24 आवर्स तक कोई स्टूल ही नहीं निकलेगा. आप जिस दिन नॉनवेज खा लिया अगले दिन इतना सारा निकल जाएगा. दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन. इतना निकल जाएगा तो आपका बैग भी स्मेल करेगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू एडजस्ट योर बॉडी अकॉर्डिंग टू योर लिविंग विद द स्टोमा. वो बड़ा नॉर्मल है. ये नहीं कि आप खाने के लिए जीते हैं. आप खाना खाते हैं, नॉर्मल खाइए. करेक्ट. जिसको नॉनवेज का शौक है नॉनवेज खाए, बट बारबेक्यू खा ले, ड्राई खा ले. ये नहीं कि बटर चिकन खाना है तो कढ़ाई चिकन खाना है. ऑल दैट इज एनीवेज नॉट गुड नाउडेज. Right. So, Mikhail, there are people who are going to watch this podcast who are going to undergo a permanent colostomy for rectal cancer, who are preparing their mind, who have probably refused to undergo a surgery. See, when you refuse to undergo a surgery, viewers should understand that they are refusing a chance of cure also. Yes. So, vis-a-vis having a permanent colostomy, what would be your short advice to those patients who are going to undergo this surgery or thinking or having fear that whether they should undergo this colostomy procedure or not undergo, or what would be your advice to those newly diagnosed cancers? If you have a chance, if there is a good surgeon, please go for it. Because there is no point, the cancer spreads very fast. जितना आप सोचते हैं ना उससे वो बहुत तेज भागता है. और अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो फिर तो आप डॉक्टर ढूंढते ही रह जाएगा, यहाँ ट्यूमर है वहाँ ट्यूमर है. रादर देन रिप्लेसिंग और पुटिंग सर्जरी के टाइम पे एक जगह आप 2-3 जगह सर्जरी करा रहे होंगे बाय द एंड ऑफ इट, अगर आपने नहीं कराया. बी इट रेक्टल कैंसर, बी इट एनी कैंसर, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चांस है, गो फॉर इट. आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैंने भी बड़ा सोचा है. आपके सामने बैठा हूँ, बड़ी नॉर्मल लाइफ है, मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता. इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. इफ यू हैव अ चांस, मैंने भी सोचा था ठीक है आई विल बाईपास द सर्जरी जब तेरा मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया था. आई टोल्ड यू. So you also blasted me कि you have one chance, this is a chance. And वही मैंने जैसे बोला, you have to think, you have to talk to yourself and you have to just say yes or no. And I chose for yes. So here I am, very normal sitting in front of you. Normal life है एकदम, कोई issue नहीं है. मैं तो कहता हूँ अगर आपको chance मिल रहा है please go for it. Because कोई फायदा नहीं है कि आप you suffer for very long. If you have a way out of a problem, that's very normal human behavior. अगर आपकी कोई प्रॉब्लम क्योर हो रही है आप बाहर आ जाइए उससे करवा के. सीधी सी बात है. मैं आगे सोचता नहीं हूँ आगे किसी ने क्या सोचना क्या नहीं सोचना. वो भी सब every once you come to terms with yourself, the entire world will also come to terms with you. Simple. और इसके अलावा तो वेरी नॉर्मल लाइफ है. मैं तो कितनी बार बोल चुका हूँ आपको नॉर्मल है. लोग भी सोच रहे होंगे भाई कहीं पेड इंटरव्यू तो नहीं है. भाई ऐसा कुछ नहीं है. I'm living with it. Once we are finishing this interview, I can show you my bag also, so that people can see. That would be so nice of you, because I really cannot thank you enough, because you won't even realize the impact that this podcast is going to have in all those patients of rectal cancers in the Western countries, Eastern countries, Southeast Asia. Everyone is going to watch this, and when it comes from the horse's mouth, the person who has undergone it, just the person who has suffered it, when he tells you that how he is feeling, then the confidence actually comes. Absolutely, yes. Whatever I can understand, bro. says, Everyone has, is reluctant to get a, something new, implanted or fitted in his or her body.
बट इसका होता है 2 महीने में आपको लगेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री सर्जरी टाइम, जब आप कहते हैं कि कराना है, वो 2 महीने आपने अपने आप से फाइट करनी है कि तूने क्या करना है. मेरे जैसा आदमी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. क्या करना है तो करना है, कोई देयर इज नो वे आउट. व्हेन देयर इज नो वे आउट तो देयर इज नो वे आउट. जिन लोगों को सफर करने का शौक है वो करते हैं वे आउट, वो वेट करते हैं. वेट एंड वॉच वाली गेम Correct. मेरे माइंड से बाहर है वो. आई डोंट बिलीव इन वेट एंड वॉच. whatever it is has to be instant. And if you're getting a good life post surgery, why not go for it? Problem kya hai? Thank you so much, Mikhail, and I am really indebted to you for coming over, taking out your time, and sharing your, these are most innermost fears, feelings that we don't usually even talk at home also. A lot of times, what we are going through, what we had been through, but coming in front of the camera and speaking it out, and I'm so happy that you did this, because this is something that I've been really struggling since long, but a lot of people are very shy to put it forth to others. One thing I'll add, जो लोग ये नहीं कराना चाहते हैं, they are not doing themselves harm to themselves, they are doing harm to the family, to their family also. वो इतने स्ट्रेस में फैमिली रहती है आपको देख के. आज मेरी फैमिली इतनी खुश है कि वो ये खुश है, सीधी सी बात है. उनको ये नहीं लगता इसका स्टोमा है. वो मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ जाती है, मॉल चलो, वहाँ चलो, यहाँ ले जाओ. शी इज जस्ट फिनिश्ड स्कूल टुडे, वाज अ फेयरवेल, मैं उसको स्कूल छोड़ गया हूँ. शी इज वेरी हैप्पी. मतलब उसके माइंड में ये है ही नहीं कि मेरे पापा बीमार है. सीधी सी बात है. Beautiful. That has gone out of their system. If it is out of my system, it is out of my family system. Correct. Very थोड़े हमारी जैसे मदर हैं, शी इज नाउ ऑलमोस्ट टचिंग 80, तो बुजुर्गों के माइंड में थोड़ा ये रहता है. उनकी आदत होती है शेयर करने की. व्हाट्सएप आ गए उनके हाथ में तो फटाफट मैसेज भेज देते हैं. तो उनको कभी कभार मैं डांट के चुप कराता हूँ कि आई एम फाइन, ये जरूरत नहीं है आपको स्प्रेड करने की न्यूज. बट यू आर फाइन इफ यू आर हैप्पी, यू आर पॉजिटिव, योर फैमिली इज पॉजिटिव, एंड देयर इज नथिंग अबाउट दैट. आपकी फैमिली खुश, आप खुश, और क्या चाहिए आपको? आपके दोस्त हैं, और क्या है लाइफ में, है क्या? और बताइए, व्हाट डू यू लिव फॉर? So before we end the podcast, there will be a rapid fire question round, single sentence answers. So we'll be asking rapid fire questions that I've been encountering from lot of patients in my OPD. So these are actual questions जो patients के mind में होते हैं. And best part है कि मैं एक former patient से पूछ रहा हूँ कि इसके answers क्या होंगे. So that the originality of the answer always remains there. Correct. And then we will ask you for 5 push-ups or a jumping jack that you said. I don't even know what it is. Jumping jack is scared. Anyone can do it. Push-ups भी करने चाहिए. बस If a permanent colostomy person is saying that anyone can do it, you mark my words, everyone, whoever is seeing it, it is coming from a warrior's mouth. And if he's saying that anyone can do jumping jack, then it comes from a person who is having a permanent colostomy. It is a very, very big thing. Thank you so much. You're welcome. Always. So rapid fire question. Yes. Can you eat spicy food now? Yes. You Absolutely. can eat chicken tikka. Absolutely. But I avoid eating spicy You because avoid. एक बार आपको नॉर्मल खाने की आदत पड़ जाए ना, आपको स्पाइस पसंद नहीं आएगा. बट I was a foodie. स्पाइस के बगैर तो मैं खाना खाता ही नहीं था. लेकिन स्पाइसी आप बिल्कुल खा सकते हैं, नॉर्मल. Done. If you are sitting in a group, and so can people pinpoint or tell you that you are having a stoma? No. No one can know. किसी No. को पता ही नहीं चलता. Not at all. Have you traveled after surgery, and which all places? Just I have not traveled much. It's more of Punjab I've been to. I've been to Gujarat, Baroda, and Rajasthan a few times. That's about it. It's all work related या personal काम. अभी छुट्टी holidays पे मैं ऐसा गया नहीं हूँ. वो तो the circumstances are such that we didn't go for last 2-3. काम बंद था, बहुत कुछ चीजें थी. मेरी सर्जरी हुई, उसमें खर्चा हो जाता है. We haven't been. Otherwise, traveling is no issue at all. आप कभी भी travel कीजिए. what is the biggest myth about colostomy that people जो लोगों के mind में है? लोगों के माइंड में है कि ये स्मेल करेगा and we will not be accepted in the social circle. This is the biggest myth. Which is absolutely false. Bakwas. It doesn't stink at all. It stinks only if your bag opens, or your base plate opens, or you don't clean it properly. That's about it. आप 4 दिन नहीं नहाएंगे, आपके साथ लोग नहीं बैठेंगे, आप बदबू मारेंगे. सेम चीज ये है, इसको नहीं सफा करोगे, ये बदबू मारेगा.
आप उसको सफा कीजिए, छुट्टी, बात खत्म. डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि ये स्मेल करते हैं. अच्छा, so patient also asked me कि can I take care, you know, Indian patients are very खुददार patients. वो कहते हैं यार मैं अपनी फैमिली को तंग नहीं करना चाहता, मैं अपने पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं मैं अपने बच्चों को तंग नहीं करना चाहता. Okay. So can you change the colostomy bag by yourself or you Yes. need some help? इनिशियली आप 2-3 बार जो जिस कंपनी का भी बैग लोगे उन्हीं को बोलना, वो आगे लगा देंगे. एटलीस्ट यू लर्न हाउ टू पुट इट. मेरे को भी 2 महीने लगे, 3 महीने लगे. सो ये जो प्रोफेशनल जो चीज़ लगाता है और आप उसको जब सीख लेते हो, आप खुद भी कर सकते हो शीशे के सामने खड़े होके. शीशे के सामने नहीं तो आप एक रिक्लाइनर चेयर ले लीजिए, उसमें बैठ के करिए. अगर आप परमानेंटली एक आदमी से ही लगवाएंगे तो इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि वो प्रोफेशनल चीज़ हमेशा प्रोफेशनली करेगा ना. अगर मैं भी खुद करता हूँ तो मेरा बैग अभी भी अगर मैं खुद करूँ 14-15 दिन चलता है, प्रोफेशनल से लगवाता हूँ 20 दिन चलता है. सो ये फर्क है बस. आप खुद बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें. खुद चेंज करने में 2-3 चीजें हैं जो मैं बता दूं, आप टेक केयर ऑफ इट. इसमें एक ऑस्टोमी पाउडर आता है और एक बैरियर क्रीम आती है, विच यू हैव टू रियली यूज इट टू प्रिजर्व योर स्किन. तो आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो दोनों चीजें हैं. वो आप जब किसी को भी जब होता है ये ब्लैक लगता है, वो जो प्रोफेशनल आएगा वो आपको समझा देगा क्या क्या चीज़ पहले लगनी है, क्या बाद में लगनी है. एंड यू हैव टू जस्ट कीप इट हाइजीनिकली, उसको रखना, उसको गीला नहीं रखना. मेक श्योर देयर इज नॉट स्वेटिंग. यहाँ पे कोई ज्यादा स्वेट होता भी नहीं अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्सरसाइजिंग. आप घर पे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई पेट में इतना स्वेट नहीं होगा, आपके माथे में ज्यादा होता है. उसको जब आप नहाते भी हैं तो उसको हल्के से डैप कर दीजिए तौलिए से, ताकि गीला ना रहे. मोस्ट ऑफ देम आर वाटर प्रूफ, यू नो, सो देयर इज नो इशू एट ऑल. एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, यू नो, नाउडेज सम टेप्स आर कमिंग, यू नो. आप एक्स्ट्रा उसके लिए, सिक्योरिटी के लिए उसमें टेप्स भी लगा लें. वो 20-20, 21-21 दिन वो टेप नहीं निकलती हैं, ऐसी टेप्स हैं. You won't even feel के वो टेप है. वो टेप्स are transparent, invisible, absolutely. They blend with your skin. It's a skin basically. It actually is like a skin. आप देखेंगे भी उस टेप को तो it's like a skin. Thank you so much, Mikhail. You're welcome. Guys, this is Mr. Mikhail. He was a heartthrob. He is still a heartthrob of our school. One of the most sportiest people that I have seen. One of the finest gentlemen that I have met. And above all, a crazy, amazing, wonderful warrior coming on the show and trying to give you his peace of mind so that you are guided to the right, through the right path. So thank you, Mikhail. Thank you so much for coming over. No, anytime for, you know, speaking out my mind also. I'm very light, you know, telling you the, you know, इतने doubts मैंने लोगों के आज clear करूँगा तो I feel very elated, you know, doing that. अगर हो सके, अगर मैं कर सकूँ. That's so humble of you, so kind of you. Thank you so much. You're welcome, always. नमस्कार. Oh my God. शुक्र है मुझे नहीं बोल रहे करने के लिए. तो 20-25 Amazing. Thank you. And एक बार ये अपना बैग भी शो कर.